इंसान दुनिया जाता है तो कितने अपने चौंचले करता है, किधरे बैड, किधरे कमरे सैट, किधरे कोई सजावटां, कुछ जिंदगी का सफ़र ਜਦੋਂ पूरा करता है तो ਇਹੋ ਹੀ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ ਪਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੋ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖੋ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ। ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਵੇ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਨਮਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕਾਰਵਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੱਚਨੇ ਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਾਨੂ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੋਏ ਜਾਨੂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਰੱਖੋ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੋਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੁਤਫ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ कि बच्चियाँ कहती हैं मामा हमने अपनी दोस्त की तरफ जाना है, उधर स्लीप ओवर करना है। स्लीप ओवर मतलब रात वहाँ स्टे करना है। हम सारी दोस्तों ने वहाँ जाना है और रात स्टे करना है। यहाँ एक मामूलात है, माएँ भी भेज देती हैं। माएँ कहती हैं चलो, सहेलियाँ हैं, माँ जानती है, उन लोगों के घरों माएँ भेजती हैं जिन लोगों को वो जानती हैं या जिन बच्चियों को वो जानती हैं, वहाँ भेज देती हैं स्लीप ओवर करने के लिए। लेकिन एक दो हादसे जो मैंने सुने हैं यहाँ, एक मुझे खातून बता रही थी कि मेरी बेटी इसी तरह स्लीप ओवर करने चली गई और वहाँ बच्चियों ने जब रात को नीचे बेसमेंट में स्टे करना था उनके घर में, जिस दोस्त के घर में गई, तो जब बेसमेंट में गई तो उनके फादर, जिनको वो अंकल ज़ाहिर कहती हैं, वो कोई स्मूदी कोई जूस बना के ले आए
और उस स्मूदी में, उस जूस में कुछ उन्होंने मिक्स किया हुआ था, क्योंकि एक लड़की ने नहीं पिया वो, उसने बच्ची ने कहा कि मैंने नहीं पीना, मेरा दिल नहीं कर रहा, और एक दो और ने भी नहीं पिया, दो चार ने पी लिया। कुछ 7-8 लड़कियां थी इकट्ठी जो स्लीप ओवर करने अपनी दोस्त के घर गई थी। और जब उन्होंने वो पी लिया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो गहरी नींद में चली गई, पूरी गहरी नींद में। और वो जो अंकल थे वो आए, ये भी सोई पड़ी थी, लेकिन इनको पता चला कोई आया है, तो इन्होंने आंखें खोल के देखा तो अंकल थे। ये खामोश से लेटी रहीं, और वो अंकल आके ना उनके नाक से सूंघ रहे हैं कि वो पूरी नींद में चली गई हैं डीपली या नहीं गई। और अंकल फिर ऊपर चले गए, वो कहती हैं। इन्होंने फ़ौरन वो एक लड़की ने अपनी वालदा को मैसेज भेजा, कोई 11:30 का टाइम था, तो उसने मैसेज माँ को भेजा। तो उसकी माँ ने आओ देखा ना था, फ़ौरन गाड़ी निकाली, और रास्ते में जो दूसरी सहेलियाँ भी आई हुई थी, क्योंकि एक दूसरे वालदैन का एक दूसरे से कांटेक्ट था, दूसरी सहेलियाँ भी जो आई थी उनके वालदैन को भी उसने फ़ौरन फ़ोन कर दिए कि मेरी बेटी ने इस तरह ये मैसेज भेजा है कि मुझे फ़ौरन आके यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ सेट नहीं हूँ, अनकम्फर्टेबल हूँ या सेफ़ नहीं हूँ। तो उसकी माँ ने इस तरह दूसरे लोग भी आ गए, और वो जब पहुँचे उधर तो उसका अंकल कहता है क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी बच्चियों को लेने आई हैं, हमें वो ठीक मतलब बस हमारे दिल को उन्होंने कोई शो नहीं किया, और वो बच्चियां जो सोई थी उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गिरती पड़ती जाग के आ तो गई वालदैन के साथ, लेकिन पता चला कि अगले दिन तक उनको होश नहीं आ रही थी। जब वो उठती थी फिर वो नींद में, तो उनको फिर ले गए हॉस्पिटल में उनके वालदैन। तो वो हॉस्पिटल में एक दो लड़कियां जो थी जिनको स्मूदी जिन्होंने पी ली थी, तो वो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसके अंदर कोई उन्होंने नशे वाली चीज़ कोई डाली हुई थी। अब ये मुझे नहीं पता चला आगे, ये कोई औरत सुना रही थी स्टोरी सारी। तो हमारे इस्लाम में ये चीज़ भी है, मैं दीन की बात चूँकि कर रही हूँ, तो दीन में ये भी है कि अपने नौजवान बच्चियों को या बच्चों को मतलब कहीं भी स्लीप ओवर की इजाज़त ना दो। ताकि आपको तो ये भी पता होगा कि इस्लाम तो ये भी कहता है कि वालिद के कमरे में भी बेटी ना सोए, और भाई भी जो हैं वो अपनी बहन के कमरे में मत सोएं और ना उसके साथ सोएं। इतना जहाँ बहन और भाई का रिश्ता इतना प्यारा होता है, बाप का रिश्ता इतना प्यारा होता है, तो अल्लाह पाक ने उन रिश्तों से भी कहा है कि वो उनके कमरे में बच्ची ना सोए या बेटियां ना सोएं, तो बहनें ना सोएं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह मुनासिब है, ये किस तरह दुरुस्त हो सकता है कि हमारी बच्ची जो है वो दूसरों के घर में जाके स्लीप ओवर करे। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आपसे करनी थी। फ़ैसले आपने करने हैं, बाकी सारी जो यहाँ हैं चीज़ें वो अल्लाह रब बड़ा मेहरबान है, वो यहाँ कर देता है। तो अपने जो हमारी कदरें हैं उनके मुताबिक चलें, यहाँ की कदरों के मुताबिक ना चलें। यहाँ की कदरें कुछ और टाइप की हैं, आपकी कदरें ये नहीं हैं, आपकी वैल्यू ये नहीं है कि आप अपनी नौजवान बेटियों को या जवान होती बेटियों को जो मैट्रिक में पढ़ रही है, 9th में, उनको स्लीप ओवर के लिए दूसरों के घरों में भेजें। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। तो जनाब आज मैं ऊपर ही थी तो मैंने व्लॉग शुरू कर दिया। मैंने कहा अपने सज्जन मित्रों से कुछ गपशप लगा लें, शप कर लें कुछ, तो आपके साथ बात करके ज़रा तसल्ली हो जाती है, खुशी हो जाती है।
और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरे बच्चे बड़े, सारों को मेरा बहुत आदाब अर्ज़ है। दुनिया के किसी कोने में भी आप मौजूद हैं तो आप मेरे बहुत करीब हैं। आप अपने कमेंट से, अपनी आरा से कभी कभी ख्वाह आप बताते ज़रूर हैं कि आप मौजूद हैं, देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये सारा कुछ जो हो रहा होता है। हम अपनी मालूमात आपको देते रहते हैं, मालूमात के साथ साथ अपनी एक्टिविटी दिखाते रहते हैं। तो आज बस कोई ऐसा काम नहीं, बस मौसम भी बड़ा दिल फरेब है, बहुत प्यारा मौसम है। मैं तो अपने मौसम से भी बड़ी खुश होती हूँ। जब धूप होती है, मज़े मज़े का मौसम होता है तो दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हुआ। मेरी प्यारी सी कज़न है माजबीन, वो हमेशा ये कहती हैं दिल खुश हुआ, तो उसी का लफ्ज़ मैंने बोला, दिल खुश हुआ, क्योंकि उसके साथ एक फ्रेंडशिप भी है ना, तो इसलिए उसका जिक्र कर देती हूँ। क्योंकि मेरे एक दो व्यूवर्स ने कहा कि वो आपकी कोई बड़ी करीबी हैं जो आप उनका कई दफ़ा जिक्र करती हैं। मैंने कहा बिल्कुल भाई। तो करीबी तो जनाब आप भी हैं हमारे, हम तो आपको ज़्यादा करीब रखते हैं, आप हमारे साथ साथ हैं, आप तो हमसे दूर होते ही नहीं। ये देखें हमारे फूलों का करिश्मा कितना प्यारा, ये देखें कितना प्यारा कलर है। वो कलर देखें इसका, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की करामत देखें, अल्लाह पाक ने अपने ही कलर, अपने ही रंग रखे हुए हैं, सुभान अल्लाह। हम भी जो कपड़ों में कलर पहनते हैं सब अल्लाह के कलर को यूज़ किया जाता है, इंसान जो है उसको यूज़ करता है। ये पूरा खिला हुआ है, ये देख, ये पूरा खिल गया माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ये फूल पिंक। ओफ कितना खूबसूरत लग रहा है पिंक फूल। पिंक कलर वैसे भी अच्छा लगता है मुझे, ये खासकर ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद है। ये देखें ये डबल शेड है इसका, कितना प्यारा ये पौधा है ना, डबल शेड वाला, कितना सोना लगता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह। ये इधर भी ये दरख्त है, और आपको बताऊं तो दूसरी साइड पे भी ये दरख्त है। उधर मेरा ख्याल है वाइट फूल है, वो भी यही है। वो सामने सामने साइड पे जो है, सामने जो लगे हुए हैं फूल, वो भी यही हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। फूलों से मुझे इश्क है, जहाँ ग्रीनरी हो, जहाँ दरख्त हों, शजर हों, इतना अच्छा लगता है ना। अल्लाह पाक, ये देखें ये भी वही पौधा है, लेकिन इसके सारे वाइट, प्योर वाइट हैं इसके फूल। और इधर आए तो इधर वही वाले हैं, डबल शेड है इधर, इधर तकरीबन डबल शेड लग रहा है मुझे, ये देख। मगर उस पे फूल बहुत आए हुए हैं, इस पे भी हैं, इन पे भी, और उस पे बहुत ज़्यादा फूल है। ये सारे देखें पौधे कितने प्यारे लगते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, हाँ बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है, ख़ज़ां है, फॉलिंग सीज़न है, और बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देख कैसी हवा आया, मैंने कहा ज़रा बैकयार्ड पे जाती हूँ। वाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर आसमान को देखें कितना प्यारा ब्लू कलर। यहाँ देखूँ बहुत, मेरा ख्याल है कोई नाशपातियाँ नीचे गिरी होंगी। पहले इसमें ना पिछले सीज़न पे बहुत नाशपाती लगी है, बहुत ज़्यादा। ये सब बातों को नाशपाती वो ऊपर देखने लगी, ये उफ, ये तो भरा हुआ है नाशपातियों से। ये देख, आपको मैंने कहा क्लोज करके दिखाऊँ, ये सारी नाशपातियाँ देख रहे हैं, काफ़ी नाशपातियाँ इतने हिस्से भी लगी हैं। ये नीचे बिक्री तो होंगी, हाँ बड़ी कम है। पहले तो इतनी नाशपातियाँ इधर गिरती थी, तोहफा तोहफा तोहफा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा। अब ये गिरी है,
या अल्लाह, ये देख, ये नाशपाती इतनी मीठी होती है, मज़ा आ जाता है। मगर पता नहीं किसी ने खाई हुई है कि नहीं, कब की गिरी आई डोंट नो। बाकी सब जो है ना खाई हुई है, ये देख। मैंने ज़रा इसको हटाया है, उन पर्दों को। मैंने कहा अंदर थोड़ा बैठते हैं। ये हम गए अपने अंदर, ये अपने मज़ा आता है ज़रा अंदर बैठने का। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना भाई। ये एक पूरा कमरा है तकरीबन हमारा। ये बहुत ही अच्छा लगता है ना। हाँ जी, मैंने कहा थोड़ा सा बैठती हूँ अंदर ना। कभी कोई मेहमान आए तो हम फिर जो बाहर पार्टियाँ करते हैं उस वक्त हम आगे बैठते हैं, वरना कभी बैठे ही नहीं। काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा ज़रा इसे खोलती हूँ, अंदर धूप भी आएगी, ज़रा इंजॉय भी करती हूँ। ये अपने इंजॉय के लिए बनाया हुआ है। अल्लाह ताला खैर करें, परवरदिगार रब्बुल आलमीन की रहमतें रहें हमेशा, हर वक्त अल्लाह मियाँ का साया रहे आलम खा। तो यही दुआएं हैं आपके लिए भी, हमारे लिए भी। पता है आपको, मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ। ज़रा मज़ा ले रही हैं अल्लाह दे इस प्यारे जो मौसम था। अंदर जावा मैं क्या देखनी अस सब की पे करते हैं। शायद अस सब भी कुछ अज वेखो ना गड्डी खलोती है, तो कम कार से करता है। देखने हैं हम जाके अंदर क्या कर रही हैं शाह बाबा, क्या कर रही। देखते हैं शाहजहान क्या कर रहे हैं। हाँ जी शाह बाबा जानी जी, कुछ कर रहे हो? काम कर रहे हैं? वो देख लगे हुए हैं काम करने। बेटी नहीं बाहर। हाँ मैं भाई, अब आप जाके ना वो बंद करना है आपने, वो दूसरे वाला। पहला तो मैं बंद कर रही हूँ, वो मैंने फुल खोला भी नहीं था जाली वाला। दूसरा आपने बंद करना है जो बाहर है। नहीं तो वो आपने जो पहला बंद किया तो दूसरा भी बंद कर सकती हैं आप। दूसरा मैंने आधा ही खोला हुआ था, पहले का हाथ मेरा नहीं जाता ऊपर। अच्छा, ये चक्कर। थोड़ी देर बैठी थी, हाँ मैंने कहा ज़रा बैठूँ अंदर। उधर क्या दिखा रही हैं? नहीं आपको ही दिखा रही हूँ, साथ ज़रा बाहर का भी नज़ारा ऐसे दिखाया। हाँ चलिए बस मैं ये ख़त्म करके याद से हमें भूल ना जाऊँ, कहीं खुला ही रह जाए। नहीं वो नज़र आ जाता है यहाँ से। ओके चलें व्यूवर्स, फिर बातचीत करते हैं ज़रा। ओ शाह बाबा वाटरमेलन पी ले आए, ये देखें जी, फिर वाटरमेलन आया हुआ है ये। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखें। अभी मैं देख रहा था टीवी, तो ना उसमें एक ऐसी चीज़ देखी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। बड़ा मैं भी वैसे इस चीज़ में बड़ा क्लियर नहीं हूं कि ये अल्लाह का क्या निज़ाम है, क्यों ऐसे है। तो मेरी मदद करें आप लोग, मुझे बताएं ऐसे क्यों है। हमारे ना पुराने एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल एक कपल है, नईम बुखारी। वो एक टीचर भी हैं, वो एक एक्टर भी हैं और शायर भी हैं। मतलब ही इज़ ओवर क्वालिफाइड टू मी, ही इज़ रियली सम अदर वर्ल्ड। बहुत बड़े इंसान हैं। उनकी मिसेस यास्मीन ताहिर, तो ये दोनों कपल बहुत ज़बरदस्त है। इनका बेटा बल्कि इसमें काम कर रहा है, ड्रामों में। टीवी का ड्रामा है,
कौन सा है जिसमें पुराने ज़माने की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया है, शीरी फरहाद या सो वो शीरी फरहाद में इनका बेटा नईम साहब का बेटा जो है वो बना है वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, सुल्तान साहब। तो वो उनका बेटा है नईम साहब का और यास्मीन ताहिर साहिबा का। तो अब क्या हुआ है कि वो मैं भी देख रहा था और मैं ये समझना भी चाह रहा हूँ, आप लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ कि आप भी बताइए कि वो बता रहे थे, वो रो रहे थे क्योंकि यास्मीन ताहिर साहिबा की जो है इंतकाल कर गई, कुछ अर्सा पहले की बात है। तो वो जो है ना इंटरव्यू ले रही थी खातून, तो उन्होंने शुरू में सवाल ये किया कि आपका कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या फील कर रही हैं उनके बगैर। तो वो रोने से लग गए ना, बाकायदा आंसू आने लग गए उनके। और वो बता रहे थे, हालांकि मैं नईम साहब से मिला हूँ, हमारा वो उन्होंने काम किया था जब मैं इंटरफ्लो में था। तो वो हमारी जो है ना बॉडी कॉपी, स्क्रिप्ट राइटिंग, कमर्शियल्स की, पोल का आइसक्रीम होती थी उस ज़माने में, उसके लिए, मूव एंड पिक के लिए, पेप्सी के लिए काफ़ी उन्होंने काम किए हुए हैं। ज़रा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते थे तो वो उनको देते थे हम लोग। तो उनसे मेरा राब्ता बहुत रहा है, तो मैं जानता तो हूँ कुछ हद तक। तो मैं देख रहा था बड़े अरसे बाद उनको इसमें ना, तो वो रोना शुरू हो गए जब उनकी मिसेस का उन्होंने पूछा और बताना शुरू किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा मैं 65 साल हम आगे रही, हम इकट्ठे रहे और बहुत ज़बरदस्त हमारी ज़िंदगी रही। रोते हुए बोली जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। अब मैं जो है ना थोड़ा सा हिल गया, परेशान हो गया। मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी, दुनिया जिसके इर्द गिर्द घूमती है, ज़ियाउल हक और उस ज़माने के लोग जो थे वो उनसे काम करवाते थे और बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, और ये बेचारा आज रो रहे हैं। बड़ा मुझे अजीब लगा। तो मैं बैठ गया सुनने और उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई। तो मैं खैर मिसेस भी, बीबी गुल भी साथ ही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार वैसे मुझे अल्लाह का इस सिस्टम की समझ नहीं आई। ये मियाँ बीवी को बड़ा स्पेशल रिश्ते में अल्लाह जोड़ते हैं और फिर वो बड़े प्यार से रहते हैं, साल हर साल रहते हैं। अब ये 65 साल रहे और 65 साल के बाद जो है ये इनमें से एक पार्टनर चला गया। मैं अपने ससुर सास इनको देखता हूँ, बहुत अरसा इकट्ठे रहे। पहले इनकी वालदा चली गई, उनके वालिद बेचारे किस तरह अकेले, क्या उनकी फीलिंग होती थी, तो मैं देखता रहता था। नईम साहब को अब देखा तो ये मुझे समझ नहीं है कि अल्लाह ने ये क्यों ऐसे बनाया है, क्यों इतना ज़्यादा वो आपस में उनकी मोहब्बत भी हो जाती है, चाहे खिंच तो रुक गई है। ट्रूली स्पीकिंग मियाँ बीवी में होते हैं इख्तलाफात, मेरे ख्याल में 100 आउट ऑफ 100 होते होंगे, लेकिन वो करते हैं, चलते हैं, और वो उसी में खूबसूरती है, उसी में मज़ा भी है, और उसी में जो है क्लियरेंस होती है, समझना शुरू होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हैं दूर होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर आप और मजबूत और करीब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप हो जाते हैं इतने करीब, इतने मजबूत, इतने फीलिंग रखना सारा, और ऐसे आप चल पड़े, अब ऊपर की तरफ, मज़े की तरफ चल पड़े, और बुम एक जो है नीचे, और अकेला बेचारा जो रह गया उसकी भी उड़ान बेचारे की ढीली पड़ जाती है। ऐसे क्यों है, आई डोंट नो। अल्लाह ताला इतने जालिम तो नहीं है, लेकिन क्या वजह है, क्यों ऐसे है कि इतनी, जो आप बड़े होते हैं ना, मैच्योरिटी आती है, तो आपके साथ साथ जो भी मुंसलिक हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जो है इन लॉज में है, या आपकी बहू है, या और जो भी रिलेशन में दोस्त हैं, कज़न्स हैं, तो आप उनके साथ और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह मियाँ बीवी तो 24/7 होते हैं, तो जब इतने ज़्यादा वो हो जाएं तो उनमें से एक क्यों चला जाता है। मैं नहीं इस फार्मूले को समझ सका हूँ पूरी तरह, और बड़ा तकलीफ़ दे है, बहुत तकलीफ़ दे, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहनों भाइयों,
रिस्पेक्ट करो, जाना है सबने जाना है। मैं बीबी गुल की रिस्पेक्ट करूँगा, वो मेरी करे, और जितना भी टाइम है भाईजान वो अच्छे तरीके से गुजारो। ये जो है ना, कोई ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसमें से बाहर निकलो। और मेरे ख्याल में जिनको साल 2 साल 5 साल 10 साल हुए हैं उनको भी थोड़ा और टाइम लगेगा इस बात को समझने में। हमारे जैसे लोग जिनको 35-35 साल हो गए तो हमें काफ़ी समझ आ गई। अभी भी होती है, दम दमादम होता है अभी भी, लेकिन अब वो शुगर ही चल पड़ा है। अब मतलब वो नाराज़गी भी जो है वो ऐसी हो गई है कि आप उसको भी इंजॉय कर रहे होते हैं कि कोई नहीं है, हमें छड्डो परे, मटी भाव मटी भाव मटी भाव तो वो मटी भाव हो जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएं, यंगस्टर्स ख़ास तौर पे, अब तो खैर यहाँ मैं पढ़ता हूँ बस स्टॉप्स पे लिखा होता है अर्ली डाइवोर्स। लॉयर है उसने ऐड लगाई है अर्ली डाइवोर्स $200, यानी कि अब डाइवोर्स जो है वो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, इंडिया का भी कोई इतना सेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं ऐसे डाइवोर्स, ऐसे तलाक, ऐसे छुट्टी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लव और वो जो अफेक्शन और जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। जो मैं नईम ताहिर साहब को देखता हूँ, अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, बीबी गुल के पेरेंट्स को देखता हूँ, और इनके जो सिस्टर मकबूल साहब को देखता हूँ, इनकी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर की डेथ हो गई, वो अकेले रह रही हैं। अकेले से मुराद अपने बच्चे और बहू वगैरह सबके साथ हैं, लेकिन रूहानी तौर पे तो अकेले ही हैं ना, बीवी नहीं है। उनको देखता हूँ, सबको देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि बहुत टफ होता है ज़रा, ख़ास तौर पे औरत के लिए। बंदा फिर भी इधर उधर अपना दिमाग लड़ाता है, निकल जाता है, औरत के लिए मुश्किल है। सो बहनों भाइयों, सीधे हो जाओ मत परेशान हो, तो ना करो, कोई हल निकालो। आई डोंट नो क्या हल होता है, आई डोंट नो। ये कह देना बड़ा आसान है जी, ज़्यादा जो है ना खुश रहने की कोशिश करें या ज़्यादा लड़ाई ना करें। ओ भाई क्यों ना करें, रब ने सिस्टम ही ऐसा बनाया, लड़ाइयाँ तो होंगी। वो खुश रहा करें। वो कैसे कैसे कोई नहीं बताता सो मैं भी नहीं बता रहा, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। गेट अ वे आउट, लुक फॉर अ वे आउट, वो ढूंढें, करें कुछ। बस मैं तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि जाना है सब ने, कोई पहले कोई बाद में, कोई इकट्ठा ही चला जाए, आई डोंट नो, जो अल्लाह ने लिखा है वही होने। लेकिन वट एवर टाइम यू हैव गॉट विद यू, रिस्पेक्ट दैट। अपने शौहर की रिस्पेक्ट करें, और शौहर मियाँ आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट द वे अल्लाह आस्क्स यू टू डू। तो वो रिस्पेक्ट के एलिमेंट के ऊपर काम करें, और यकीनन अल्लाह ताला आपको उसमें तरक्की देंगे और ज़िंदगी खुशहाल होगी। 100% फिर भी नहीं होती, क्योंकि हम इंसान हैं, हमने करना है, अपनी लोच तलना होता है हमने। तो फिर भी कोशिश करें कि बिज़ी रहें, दिमाग को निकाल दिया करें उन मामला से, किसी और चीज़ में उलझा दें दिमाग को, वो आपको निकाल देता है इन चीज़ों में से। सो रिस्पेक्ट वट एवर इज़ गिवन टू यू, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। सो रिस्पेक्ट दैट ब्लेसिंग, उसके साथ चलें अच्छे तरीके से। कैसे, यू नो, आई डोंट नो, मैं बता नहीं सकता। चलें देखते हैं फिर। जी मैं अंदर आ गया हूँ, मैंने कहा अंदर का नज़ारा कराऊँ। ये लोग जो हैं बड़े बिजी हुए हुए हैं, देखें इनको ये क्या कर रहे हैं। आप जो है ना हमेशा सियासत ही देखती रहती हैं, इसीलिए आपकी जो है ना जुल्फ़ें ख़राब रहती हैं हमेशा। हम सियासी आपको बंदे कलर हैं, लगाने हम पड़ते सियासत हैं। नहीं, सियासी नहीं मैं देखती रहती, मैं देखती रहती हूँ मुल्क में क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, और वैसे क्या हो रहा है। करंट जो है ना लग जाएगा, इतना करंट ना देखा करें, करंट पड़ जाना है आपको, बड़ा तगड़ा करंट पड़ जाना है। अल्लाह ना करे। चले पिज़्ज़ा जो है वो डाइटिंग पे है आजकल, अब वो चुन चुन के खाती हैं, चुन चुन के खा रही हैं। चुन के खाती हैं। अरे बिरयानी खाई अभी। बिरयानी की दीवानी है आपको, क्रेजी अबाउट Crazy, राइस, crazy। है ना। ये कान में क्या है? थोड़ी सी बची हुई थी, एयरपोर्ट लगाए हुए थे। रात की थोड़ी सी बची हुई अच्छा। थी,
तो पड़ गई है रात की जो बिरयानी थोड़ी बहुत इतनी सी रात थी। की रानी रात की रानी, तो ये सुबह की रानी पड़ गई है उसमें। बहुत क्लोज ना लिया कर। नहीं, आपका जो है ना ड्रेस दिखाना चाह रहे थे। ड्रेस तो दिखाई, मैंने दुपट्टा भी नहीं दिया होगा। ड्रेस तो बहुत खूब। ये वही है ना, पीछे भी इसके कुछ डिजाइन नहीं है। हाँ, मिक्स कर रहा हूँ ना। वो और है। हाँ, नहीं नहीं, वो मैं कुछ समझ गया हूँ। पीछे भी एक था आपका, जो पीछे भी डिजाइन हाँ, था। वो फुल डिजाइन है पीछे। ये तो बलोची जो है ना, दरी नहीं लग रही, हाँ, बलोची वही है बलोची। बलोची बेडशीट। अब बाबा आजकल यही डिजाइन आ रहे हैं। ओह माय इसको गॉड, आप दरी कह लें या बलोची कह दें या कुछ भी कह बलोची लें। दरी। मुझे याद आया ये कराची में, डिजाइन, ये फिजा आ रहे हैं। ये बात क्या करते हैं, कराची इन्हें पता नहीं है में- कुछ भी। बस करें अब, कराची ना करें। हाँ, गलत बातें करें। इतना कीमती लिबास पहनना होता है व्यूअर्स, और ये गलत बातें कर देते हैं। कराची में जाने कराची में मैं रहता था, मेरी नानी जो है जिस चीज में रोटी बना के लपेटती थी, वो उसका डिजाइन इसी तरह सा कुछ ये मिलता जुलता। बाजार में आजकल यही डिजाइन है, क्या हो सकता है। नहीं, वो जरूरी नहीं है। तौलिए भी इस डिजाइन के हो सकते हैं, चादर भी हो सकती है, शॉल भी हो सकती है। मतलब एक डिजाइन फेमस हो गया, जैसे अम्बी डिजाइन नहीं होता था, अम्बी। वो कितना फेमस है। अब वो अम्बी डिजाइन हर चीज में होता है। अभी भी है, अभी भी है। माइंड ये तो नहीं डिजाइन करता बस जो है ना हो जाते हैं इस तरह। इतना मेरे नाक पे नहीं, ना नाक चढ़ाएं। पे नहीं है खुदा ये। के लिए फिदा, ऐसे ऐसे कर। अब आपकी नाक बड़ी खूबसूरत है, तो मैं क्या करूं। चलो ठीक। सियासी देखें और अपना खून खुश्क करें। आपने जो है कब जाना है खून को नहाल करने के लिए? ये बता। 3:30 बजे। खून को आपने रमा दवा करने के लिए किस वक्त जाना है? 3:30 बजे। 3:30 बजे, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, शेरजान क्या देख रहे हैं? ये मैं ज़रा डिलीट करता रहता हूँ कि ज़रा उसका जो है डाटा डूटा खर्च हो रहा है या लोड पड़ा रहता है, तो उसको मैं ज़रा रिलीफ देता हूँ। ये मैं अपने दिमाग से भी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, आपको पता है। मुझे ये पता है। मेरी नेचर है कि जो बेकार की चीज़ें हैं, बेकार की वीडियो हैं, उनको फ़र्क। ये ऐसे फर्क करते हैं व्यूवर्स, ऐसे। ये 1 मिनट में डिलीट। बाबा जानू को ये डिलीट की बात कर रहे थे। हाँ, ये दिमाग से अपनी हर बात डिलीट कर देते हैं। हमें डर लगा रहता है किसी दिन हमें भी डिलीट ना कर दें। नहीं नहीं नहीं, कितने सोने लगे हैं। आपने हमें खुश कर दिया शाह बाबा जी। मैं कह रही हूँ आपके साथ में चली जाऊँ, मैं तो भूखे मुखे उधर करूँ। अच्छा, मज़े से कर बैठी हुई, फिर डाली। 4 बजे छोड़ूंगा, 6 बजे पिक कर लूँगा। हाँ, वही का 2 घंटे तो ऐसे गुजर जाते हैं फिरते हुए। हाँ, पता भी नहीं चलता। ये है जी करोला एल्टस अनटच्ड फॉर सेल। अच्छा, कितने की? 65 लाख रुपया हैं? लाहौर में बिक रही है। हाय, 40,000 किलोमीटर चली। अस्तगफार, कभी आपने सुना था? हमने याद रखें करोला गाड़ी निकलवाई शोरूम से, और 1 महीना ही मुश्किल है ना सर, 1 महीना पुरानी थी, थोड़ी सी चली होगी, और हमने इधर आ गए। हमारी वो लेट निकली, और इधर हमने टिकट्स बुक करा ली कनाडा आने के लिए। तो आप यकीन जानें कि वो गाड़ी 1 महीना या 20 दिन, और उसमें हमने CNG भी लगवा ली, जो लगती थी ना एक ज़माने में अंदर CNG का सिस्टम। 60-70 हज़ार का हमने वो भी लगवा लिया, और मुश्किल 1 महीना हमने उसे यूज़ किया। और इधर आना तो ठहर जाए असद। तो मैंने अपने बड़े भाईजान से, असद साहब ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, अब इसको इधर खड़ा करके तो नहीं जा सकते। आप यकीन जाने 1 लाख रुपया उसने कम दिया हमें, जितने की हमने ख़रीदी थी, और 60,000 का जो लगा था वो भी उसने कहा इंक्लूड करें, तो हमें सिर्फ 40,000 ज़्यादा मिला, आप यकीन जाने। और नई ब्रांड न्यू गाड़ी, और आजकल क्या तूफान सदाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 40,000 किलोमीटर चली हुई और 65 लाख की गाड़ी है। ये वही करोला है जो हमने निकाली थी। एल्टस कह रहे हैं, एल्टस पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। एल्टस को नया वर्जन होगा करोला की, करोला का करोला एल्टस। होगा कोई, हमें तो, हमारी तो टोयोटा करोला थी। हमारी करोला। हाँ, तो वो याद है सत,
हमने 60,000 का वो गैस का भी सिस्टम लगवा लिया, कितना गलत बात थी। हम तो आ रहे तो थे। कोई नहीं, ये याद नहीं करते, ये डिलीट कर दिए है। ये डिलीट वो ये होता कहते है हैं, डिलीट जो मैं आपको इसको वो कहते हैं कि डिलीट किया करें, ये जब याद आए ना तबाही मचा दे। नहीं, अब आप मुझे दिखाए ना ये जरा, ये देखें। मैं भी जो है ना हमेशा निकाल लेता हूँ जितने भी वीडियोस हैं और सारी, क्योंकि उस पर लोड पड़ता है ना आपके मदर बोर्ड पे और उसके कंप्यूटर पे, और ये उसे बोझ निकाल देना दिमाग पे पड़ता चाहिए। है यही बोझ दिमाग का है। और सारे जिस्म पे पड़ता है। अब ये बोल रही है ना कि गाड़ी ली थी तो इतने का नहीं, गैस मैंने मिला है। फौरन डिलीट कर दिया। डिलीट? मैंने कहा नहीं आप फोन से भी डिलीट करें, आप फोन भी डिलीट नहीं करती। अब फोन में बहुत चीजें पड़ी रहती हैं वाकई। हाँ, उसको भी सिर्फ डिलीट करें। तस्वीरें मैं डिलीट नहीं करती, मैं कहती हूँ इतनी ना याद पिक्चर है तो इनको कैसे डिलीट करूँ, और बाकी तो इतना भरा पड़ा है उसे कौन डिलीट करे भाई। उसमें हमारी भी हैं, तस्वीरें भी हैं। अब उसको एक एक करके डिलीट करूँ तो वो तो हजारों लाखों पड़ी हुई हैं अंदर चीजें। नहीं अब मैं वो कैसे डिलीट करूँ एक एक। तो आपने सिस्टम की बात की है, सिस्टम नाराज हो गया व्यूवर, और सिस्टम साथ ही बंद हो गया। देखे अल्लाह की ये जान। पता क्या हुआ है, ये मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैंने अपनी तरफ किया है और ये बंद हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ? कि इस पे लोड ज्यादा है। तो वही तो कह रही हूँ ना कि डिलीट करें, हाय, कौन डिलीट करे? या प्लीज। सारा ही डिलीट कर दूं, उसमें सब तस्वीरें चली जाएंगी, चली जाए भाड़ में जाए। नहीं, एक बार देख लेना नहीं, वो कौन सी देखना ही तो मुजर है ना, देखना ही तो मुजर है। वो कौन देखे इतना ज्यादा? पता लोग मैं क्यों भी सेंड ना, करते रहते हैं। एक तो सुबह का सलाम जो स्टार्ट हुआ है ना, उसने एक बड़ी तबाही मचाई हुई। ये अभी मैं देख रहा था नईम बुखारी साहब, नईम ताहिर। नईम ताहिर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, आप जानती हैं, यास्मीन यास्मीन के ताहिर। हस्बैंड, और वो बताते खुद बहुत अच्छे, हाँ, मतलब वो देख रहे थे ना उनका प्रोग्राम, बीबी गुल भी देख रही थी, मैं भी देख रहा था। वो रो रहे थे, उनको इतना अपनी दुख बीवी हुआ के अपनी लिए। बीवी का। अभी वो गई हैं कोई तो 2 मैंने माह। अपने व्यूअर्स से पूछा है अच्छा, पूछा है आपने? कि ये मैं अल्लाह के सिस्टम को नहीं समझ पा रहा। बहुत कुछ अल्लाह की चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, समझा हूँ, 65 साल लेकिन का ये नहीं मैं समझ पा रहा कि 65 साल इतना इश्क, इतना मतलब इश्क ना भी हो 65 साल में हो जाता है, खैर उनका बहुत सब इश्क कुछ था। हो जाता वो है। कहती है उनका मसाली था, वो इतना इश्क था। पढ़े लिखे थे ना, हस्बैंड जो पढ़े था लिखे वो लोग थे। इतनी केयर उसकी करता था, यास्मीन ताहिर की। ये जो इंटरव्यू लेने वाली थी वही बता रही थी कि बस उसको वो बीमारी लग गई थी, असद भूल गई सब कुछ। क्या शिजोफीना कहते नहीं, हैं? अल्जाइमर। अल्जाइमर। अच्छा, अल्जाइमर वो हो गई थी, और फिर साथ और बेशुमार बीमारियां लग गई बहुत। उनका बड़ा, हमने तो घर को अस्पताल बना दिया हुआ था। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो होता है ना मोहब्बत मोहब्बत, और ये 65 साल का इतना रिश्ता, और उसमें से एक को अल्लाह ताला प्यार करके ले जाते हैं, ये बड़ा जुल्म नहीं है वैसे? बस जुल्म, ये अल्लाह तो की जुल्म चीज का है। जुल्म तो हाँ, नहीं ये कहेंगे। मैं इसको नहीं समझ ये कहेगा क्या मैं जुल्म कर रहा हूँ? अल्लाह मियाँ ये भी कहेंगे ना कि क्या मैं जुल्म कर रहा हूँ? ये आप फिर मेरे बालों के पीछे पड़ गई हैं यार। ये इनको ज़रा समझाया करें कि ये जो है ना इस तरह ना करें, मतलब बाल कटवा दें, ट्रिम करवा लें। मैं नहीं समझ पा रहा क्यों। नहीं, अब आप कह रही मैं उसकी आगा सिकंदर की तरह लग रहा हूँ। आगा सिकंदर की तरफ नहीं, आपको मैंने बता दिया है। उनके एक अंकल थे ना, आगा सिकंदर जोधाकार थे, और उनके एक अंकल, पता नहीं उनका नाम क्या था, बड़े अच्छे, बड़े प्यार करने वाले, आगा जी उनको भी कहते थे। रिश्ते कराते थे। हाँ, कभी कभी रिश्ता भी, उनके ताल्लुकात बड़े थे ना, तो वो नेक काम था तो वो करवा, पैसे पूसे नहीं लेते थे कुछ भी। वो नेक काम था तो वो करवा देते थे। अगर किसी की बेटी, किसी का बता देते थे भी उसका बेटा है, उसकी बेटी, इस तरह अपने आप को बिजी किया हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने बाल जरा लंबे रखे हुए थे, गोरे चिट्टे लंबे ऊंचे जवान, खूबसूरत इंसान थे। तो अच्छा साहब भी खूबसूरत इंसान है, आपको पता है। और ये गेटअप जो इन्होंने किया ना, मुझे वो याद आ गया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो मैंने कहा शाहजहां आप इतनी इतनी ट्रिमिंग करवाएं, ट्रिमिंग करवाएंगे तो उससे आपके बाल जो इतने गिर रहे हैं, फॉलिंग हो रही है, शायद थोड़ा सा उनमें स्ट्रेंथ आए। तो आप तो आगे से फिर वो आंखें ऐसे ऐसे करके मुझे देखते हुए कह रहे हैं कि पता नहीं आप मुझे क्यों ऐसा कह रही हैं।
आगा साहब एक बड़े ज़बरदस्त हाँ, इंसान बहुत थे, ज़बरदस्त। बड़ा नेक आदमी थे, देखें बहुत हमें नेक। उनकी खसूसियत का नहीं पता, हमें तो वो मिले जब बुजुर्ग थे वो। लेकिन पता उनकी नहीं वो गुफ्तगू क्या से चीज होंगे, हाँ, पता नहीं उन्होंने क्या क्या काम किए होंगे। बहुत हसीन आदमी थे वैसे। हसीन तो अल्लाह ने उन्हें बनाया हुआ था, लेकिन मैं समझती हूँ हर इंसान की एक किताब है, किताब जिंदगी। उस पे उसके सारे वाकयात हैं। अब हमें वो नहीं पता कि वो क्या अफलातूनी जवानी होगी। खूबसूरती के पॉइंट से नहीं मैं कह रही, इस विजडम या जो बंदा अपने काम करता है, क्रिएशन करता है, पता नहीं क्या होंगे वो। बहरहाल अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे आप इंसान। देखिएगा आगा सिकंदर एक पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत ज़बरदस्त एक्टर था वो, मेरा दोस्त भी था वो, और बड़ा खूबसूरत आदमी था। उसके ये चाचा थे, उनका बेटा भी ये जो टीवी में काम क्या अभी कर नाम रहा है है, उसका? आगा अली आगा अली के डैडी। डैडी थे। और अभी एक ड्रामा जो चला है श्री फरियाद, उसमें जो वो बना हुआ था मोटा सा जो था, क्या नाम उसको दिया हुआ था उन्होंने अंदर हाँ करवा, हाँ, वो वो अपना वो भी उनका बेटा आगा सिकंदर का। ओ यस यस क्या नाम यस, उसको दिया हुआ है, मुझे नाम शीरी फरहाद में वो जो, मेन वो करेक्टर है। हाँ, बड़ा जो चलता हाँ, पुरजा है, मोटा चलता सा। पुर्जा मोटा था जो वो हाँ डायरेक्टर था, उसका सारा काम वही हाँ, करता था। मैनेजर है वो। हाँ मैनेजर था, तो वो भी आगा सिकंदर का बेटा है। और अली अच्छा, भी आगा सिकंदर, अली अली, आगा हाँ, अली भी आगा सिकंदर का बेटा है। तो बड़ा आगा अच्छा बंदा सिकंदर के था। वो अंकल थे जो हमसे उनके एक रिलेशन से बन गए, आसम भाई के तवज्जुह से। आसम भाई जो आपके दोस्त है मॉडल टाउन वाले, उनके वो जानने वाले थे। तो उन्होंने हमारे साथ उनको मिलाया, तो वो बड़े इम्प्रेस हुए, हमें अपने घर भी ले गए। मॉडल टाउन में ये जो बने हुए अपार्टमेंट से उधर उनका घर था, तो वो हमें अपने घर में भी ले गए एक दफ़ा। बड़े अच्छे बंदे थे, बहुत ही अच्छे। शिया लोग हैं ये। तो उनकी बहन का घर भी याद है, अपनी बहन के घर भी ले गए, जो हुसैन चौक के पास गुलबर्ग में था। अलम लगा हुआ और सारा कुछ था, पंजा लगा हुआ। तो उनके घर भी ले गए गुलबर्ग में। तो इस तरह बड़े अच्छे इंसान थे। उनका जिक्र आया कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। असद को मैंने कहा मुझे वो याद आ रहे हैं आपको देख के। वो हसीन बहुत थे। अब हमारी, ये कम हसीन वो है, ये आप भी हसीन, हसीन है। मुझे अब आप हम क्या इनडायरेक्टली करें? हसीन कह रही हैं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं कहती ये बातें? मैं तो हमेशा आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगी, व्यूवर्स आप गवाह हैं इस चीज़ के, मैं क्या कर डायरेक्ट सकती हूँ? बोलें। ये किसी के बाल आपके फलाने बड़े अच्छे थे, आपके भी बड़े अच्छे, साफ साफ बात करें, खुली बात। ये देख के हंस रही हैं, डायरेक्ट बोला करें। आप जानते हैं, आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट ही बोलते हैं। अच्छा जी, ये पता नहीं क्या चाहते हैं, अंदर ही अंदर फूले हाँ बने हुए हैं, फूले खा। बहरहाल चले, मेरा ख्याल है इजाज़त लें। इजाज़त लें, हाँ, टाइम भी हो गया है। आपका भी टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह ताला एक नया व्लॉग नया दिन लेके कल फिर हाजिर होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इर्द गिर्द के इंसानों के साथ, हमसायों के साथ, सबका तो आज आप पे हक है और आपका उन पे हक है, और फ़राइज़ में भी ये शामिल है। तो याद रखें, हमसाए जो हैं, हमारे प्यारे नबी ने कह दिया था कि एक टाइम पे मुझे ख्याल आया, अल्लाह जितना हमसायों के बारे में जिक्र करते थे, मुझे ख्याल आया कि अल्लाह पाक कहीं हमसायों का जायदाद में हिस्सा ना रख दें एक दूसरे के ऊपर। हमसायों का इतना है, तो हमसायों का भी ख्याल रखें, रिश्तेदारों का भी, अजीज़ों का, अरब का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें, लेकिन शांति के साथ, सुकून के साथ। इस दिमाग में गल्लड़ बल्लड़ 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 कट्टे नहीं करने। नहीं तो शांति अगर आप कह रही तो फिर इंडिया जाना पड़ेगा मुझे। शांति इधर ही है, शांति उधर है। ये व्यूवर से कि नवा हूँ जो आया जो मैं की मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ विद्या भी होनियां अदाबर्स कर रही हाँ, और उन्होंने शांति का किस्सा खोल देता है कि शांति भाई अगर तुम बातें करोगी तो फिर मुझे किसी। ये शांति बाई क्या है जी? शांति बाई ये आपका बड़ा मसला है। वो लक्ष्मी के पापे नहीं होते ये? चावल नहीं नहीं, ये जो है लक्ष्मी का आटा, लक्ष्मी के आटा, चावल, हाँ, लक्ष्मी के रस, ये भूल जाती हैं। मैं कह देती हूँ शांति भाई। ये शांति बाई कह देती लक्ष्मी के आटे को, और लक्ष्मी दिमाग पे चढ़ नहीं, लक्ष्मी के रस भी थे। अच्छा ताई चावल लक्ष्मी के लेने हैं। और फिर वजंती बाई, कभी शांति बाई, कभी जो है कल्पना दोषी,
कभी ये कुछ मैं मतलब ऐसा लगाया करती होता है हूँ, हाँ, इन्होंने? व्यूवर तो मैं ऐसा करती ये हूँ। जान के करती है या जान के, दिमाग जान- खत्म हो जाता है आपका? नहीं जान के दिमाग ही मुक गया जी। जान के करती हूँ, अल्लाह ना करे कि दिमाग मुके और किसी का भी ना मुके। जिस दिन दिमाग मुक गया उस दिन बंदा मुक गया, बंदा ठुक गया। बंदा ठुक गया उस दिन। अल्लाह माफ़ करे परवरदिगार। बहरहाल ये जान के इसी की बातें करती हैं। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट्स नहीं किया और लाइक नहीं किया, प्लीज़ सारी चीज़ें करें, उसको आप भूल के क्या कहेंगी? सब्सक्राइब करें। और हर चीज़ किसी भी व्लॉगर के लिए ये एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है, उसको बूस्ट अप करने के लिए। तो इसको शेयर करें ताकि इस व्लॉग की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।